Honorable Chief Guest, Engineer Wasim Nazir, Chairman, Pakistan Engineering Council, respected deans, directors, distinguished guests, sponsors, faculty members, and my dear students, Assalamu alaikum. I feel honored to welcome you to the Open House and Job Fair 2025. This event is not just a platform to witness the professional prowess of our graduates, but also a testament to our shared commitment to the vital industry-academia linkage, a cornerstone of national progress. We have arranged this event primarily to put on display the professional knowledge and abilities of our graduating students from engineering, computer science, and management sciences. This platform provides our graduating students with the opportunity to showcase their innovative work. We are honored to welcome senior professionals from a range of industries who are here to engage with our graduating students and identify potential candidates for roles in their organizations. A central feature of this event is the exhibition of 76 final year projects, each reflecting our students' creativity, research-based thinking, and dedication, all nurtured under the guidance of our committed faculty. We have invited executives from various industries to interact with our graduating students and recognize their potential for suitable placements. To celebrate excellence and innovation, certificates will be awarded to the best projects in each specialization. Honorable Chief Guest, your presence today is a testament of the Pakistan Engineering Council to support engineering education throughout the country. PEC is pivotal in overseeing and setting high standards in the field of engineering and ensuring high quality of education all over Pakistan. It gives universities like ours a clear path and purpose. I'm sure that your presence here today would be a source of inspiration for our students. At the University of WA, we follow PEC's outcome-based education system, and we work hard to produce graduates who not only meet national standards, but can also compete globally. I'm happy to share that all our engineering programs are level 2 accredited by the PEC. I'm also very pleased to share with you some of the landmark achievements of the University of WA during the past few years. These milestones show our resolve to uphold the high standards of education, research, and innovation. After performing well in the Times Higher Education Impact Rankings, securing up to second position in Pakistan and first position in Punjab in 4th SDG of quality education, University of WA has now submitted its data for QS Asia and QS World rankings just in this year, and we eagerly await the results to be announced next month. Our ORIC has performed very well in the past few years, and thanks to Amjad for that. Last year, HEC upgraded our ORIC from Y to X category, and this position was also maintained in the rankings announced this year. Our next target would be a W. Our Directorate of Quality Assurance and Enhancements scored 97.80 marks in HEC's latest annual progress report and retained its top position in W category. This year, University of WA joined the CPAC Consortium of Universities, a top-level network that encourages partnerships between the best universities in China and Pakistan. As a member of the China Consortium, the university has completed a high-impact international project titled China-Pakistan Nexus of Electronic Vehicle Industry Chain and Coordinated Development Policy, jointly funded by the Pakistan Science Foundation and the National Natural Science Foundation of China with a grant of around 10 million rupees. This project also produced a significant policy paper on green development that was published in Chinese Social Sciences Today, affiliated with the Chinese Academy of Sciences, contributing well to the Belt and Road Initiative. We are in a process to become a member of the ComsTech Consortium of Excellence, which is a network of the leading academic institutions that bring together the best universities in OIC countries on a single platform to improve our education and research in science and technology. Work is in progress, and I hope to hear some good news later this month.
Three of our research journals, Journal of Management Sciences, Journal of Social Sciences, and Journal of Computer Science, received Y category status from HEC for the academic year 24-25. University of Wa, with around 175 faculty members, and I repeat the number 175, now produces more than 250 international journal publications per year. In 2024, our researchers published 261 research papers with a total impact factor of 630. And what was the impact of this research? I will come that shortly. The university has signed 54 MOUs with top academic and industrial organizations, both in Pakistan and abroad. These agreements help in joint research, internships, and exchange programs for students and faculty with institutions within Pakistan and worldwide. Our Honorable Chief Guest, University of Wa offers a unique industrial culture where there is a complete integration of laboratories and testing facilities of Pakistan Ordnance Factories and Wa Engineering College, ensuring a synergy of efforts. University has a dedicated collaboration committee with Pakistan Ordnance Factories, under which 4 major projects were recently completed. These include treatment of lead from SGF factory effluents, development of conducting floor for explosive handling areas, interfacing of PLC with HMI for D20 services, and development of water repellent seals for high-tech plastic factory. Additionally, 4 projects are in progress with POF, 2 of them focused on innovative artificial intelligence applications in healthcare in collaboration with POF Hospital. Our MS students contribute to the impactful research, including a study duly approved by POF on solid waste management in Wa Cantonment area, assessing efficiency and its impact on workers, stakeholders, and the local community. Our university is engaged in high-tech research in collaboration with the Air Weapons Complex. 2 ongoing projects in the field of machine learning and control systems include the use of AI for satellite to infrared imagery transition and Unreal Engine-based flight simulation using GPS and image-based guidance. On the policy and development front, the University of Wa successfully completed a project with the Pakistan Institute of Development Economics, PIDE, titled Comprehensive Baseline Assessment and Sustainable Pathways for Solid Waste Management, funded under the RASTA Competitive Grants Program. A new RASTA-funded project is also underway titled From Disable to Gigable, which explores how gig platforms may empower persons with disabilities, with a funding of around PKR 5 million. In a joint research project between Japan and Pakistan, a world record in neutron imaging resolution of 887 nanometers was achieved. This very useful research, joining physics and engineering with cutting-edge technology, was undertaken by one of my PhD students in collaboration with RIKEN Japan, PARC, Nagoya University, and Kyoto University in Japan. 3 separate Japanese institutions, namely RIKEN Japan, Tohoku University Japan, and Science News Japan, issued press releases on this landmark achievement. And this news was also reported by HEC and our local media. Dear industry leaders and research partners, our graduates are trained to meet the fast-changing challenges of the professional world. They are competing with their contemporaries from various public and private engineering institutions, and according to my feedback, they are not handicapped in any perspective. I request you to work closely with us by offering jobs and internships, involving our students in industry-based projects, and exploring joint research opportunities. We believe in preparing problem solvers, not just degree holders. Your suggestions are very significant to help us match our education with what the industry needs. I would like to thank the Registrar, Deans, Director Oric,
along with his entire team, for their hard work in organizing this useful event under very challenging circumstances. I must tell you that. Honorable Chief Guest, your kind presence today confirms your strong support for promoting top quality engineering education. We are truly thankful for your guidance and encouragement. We look forward to strengthening our collaboration with PEC in key areas such as accreditation visits, resource sharing policies, ethics and professional development initiatives, as you were mentioning earlier on, curriculum development, and education policy. The University of VA remains committed to supporting PEC in all its future endeavors under your able leadership, sir. I also thank Additional Registrar PEC Engineer Suhail Khan for his charming presence. Thank you very much for coming. To all our respected guests, thank you for coming and supporting our young engineers and future professionals. And to our graduating students, congratulations. I hope you will continue moving forward with hard work, honesty, and a love for lifelong learning, something we need now for Pakistan. Thank you very much. Thank you, sir, for your remarks. I am very delighted to welcome our respective chief guest, Engineer Wasim Nazir, Chairman of the Pakistan Engineering Council, a distinguished professional in the field of engineering and leadership. Engineer Wasim Nazir earned his BS in Civil Engineering from the UET Lahore and got Masters in Engineering distinction from the University of Southampton, England. He holds a Master's in Business Administration and Management from Henley Business School, UK, reflecting his well-rounded leadership in both engineering and administrative spheres. Engineer Wasim Nazir has more than 39 years of experience in the field of engineering. He became the Managing Director of Pakistan Private Limited in January 1986 and has been leading the company ever since. Since 2010, he has been a member of the Board for Global Water, Transport and International Development Boards. He has also been a member of the Asian Regional Work Group from 2010 to 2021 and worked as the Regional Director, Mott MacDonald. He has served as the Vice President of the International Commission on Irrigation and Drainage, ICID, from 2016 to 2019. In 2024, he was selected to the prestigious office of the Chairman of the Pakistan Engineering Council. With such a rich background in engineering, infrastructure, and international development, his presence here today is a great honor and a source of inspiration for our students, who will certainly wish to follow his footsteps. Sir, may I request you to please come forward and share your valuable thoughts with the audience. The Chairperson, Pakistan Engineering Council. Sir, please. Bismillahirrahmanirrahim. Respected Professor Jamil Uddin Nabi, Vice Chancellor, University of VA, Professor Dr. Amjad Hassan, Director, OREC, Brigadier Harun Abbas, Registrar, Deans, Directors, faculty members, distinguished guests, and industry leaders who are here, and all the students who are present here. मैं जब बैठा तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि आज जितना टाइम मर्जी ले लें, हमारे पास बहुत टाइम है, क्योंकि इन्होंने मुझे लंच पे भी इनवाइट कर लिया है. तो इफ़ यू अलाउ मी, तो मैं कुछ स्टूडेंट से, आपने तो इतनी बातें कह दी हैं, आई डोंट नीड टू रिपीट ऑल.
because it's all said, what you have been doing, आपने ओपन हाउस क्या होता है, all sorts of these things, encouragement. मेरा ख्याल है मैं जहाँ जाता हूँ, मेरा ये तीसरा ओपन हाउस है, तो मैं I try to go there and try to talk to faculty, look at engineering projects, meet industry के यहाँ पे तो बैंक बड़े हैं, मुझे एक स्टेट बैंक भी बताया गया है, एक मुझे एक्सिस बैंक भी बताया गया, तो मुझे लगता है कि यहाँ कुछ बैंक का कुछ कारोबार है. That's great. So this is a big change. When I came to one of the things I started off talking to my staff that हम financial modeling, financial पे भी लोगों को अपने young engineers को बताएंगे. The entrepreneurs, they can't go to the next level because of the lack of how to make money, how to generate fund. So that's a very good thing. As I am talking to stock exchange वालों के साथ, they collaborate with us and we for engineers, because engineers are commercially तो उनसे इतने नहीं हैं. हम 2 ड्राइंग रूम वाले आदमी हैं, ड्राइंग बोर्ड पे बैठे काम किया चले गए. हमें लोग पता क्या कहते हैं कि ये वर्कर लोग हैं. But today I can tell you the invisible force behind last 10 days of what has happened into this country, उसके पीछे invisible force कौन है? The engineers. ये मानना पड़ेगा कि engineers are the हर peace time में भी, war time में भी, they can contribute to that extent that nobody can imagine. But our profession needs to be uplifted. हमारा profession, मुझे आज डॉक्टर साहब कह रहे थे कि लोग इंजीनियरिंग में नहीं आ रहे हैं. मैंने कहा इंशाल्लाह 1-2 दफ़ा और इंडिया के साथ हो गया तो इंजीनियर सारे बन जाएंगे हम. So, अब हमें वी हैव टू प्रमोट इंजीनियरिंग. उसके लिए अच्छा एक तो बात है, मुझे जब आप ताली मारते हैं ना, बहुत कम मारते हैं यार. इस पे तो कंजूसी ना किया करें. वो कल मैं देख रहा था टीवी पे, ट्रंप को इतनी ताली मारी उसने SBN ने कि मैं खुद हैरान हो गया कि वो उसको सिर्फ ट्रंप ही मिला था ताली मारने के लिए. सो जब मैं जाता हूँ ना तो यूनिवर्सिटी में बड़ी कंजूसी से ताली मारते हैं. तो उस दिन मैंने एक गया था, मैंने कहा यार कम से कम दिल खोल के बुला करो. ताली से पता क्या होता है, आपके अंदर एनर्जी आती है, नॉट टू द स्पीकर बट टू एवरीबॉडी. एंड दैट नेशन, जो नेशन है उसकी चंद एक चीज़ें होती हैं कि खुशहाल. अब मैं वो कन्वोकेशन पे मुझे बुलाते हैं डॉक्टर साहब, तो 70% तो बिल्कुल मायूस. मायूसी गुनाह है भाई. The day you are graduated is one of the best day of your life. सिर्फ इसलिए कि शायद मुझे शादी नहीं मेरी होगी क्योंकि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी. पता नहीं किस तरीके से वो आते हैं. 30% are fresh and venom. तो मेरी आप बच्चों के साथ जो स्टूडेंट्स हैं, लाइफ को एंजॉय करना सीखो. और लाइफ एंजॉय आप कहेंगे जी पैसा नहीं है तो एंजॉय कैसे करें. देखिए, it is not written. I was like you 50 years ago. I never thought I will be the chairman of PEC. I never thought I will be one of the successful director in the industry. I never thought about it. I was having a cycle when I started off. So kya? One thing, what you should learn from me, I never look back. I remained focused. ये मैं इसलिए कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, because आपने सब कुछ बता दिया. आज मैं आपके प्रोजेक्ट्स देखे हैं, so much impressed. They're great projects. ये ताली आपने अपने लिए मारी है. So it's a great thing. आप में से शायद 10 सालों बाद आपके बंदे जो उनसे एंटरप्रेन्योर हुए होंगे, लीड कर रहे होंगे, आपको इस वक्त अंदाजा नहीं है कि व्हाट आर यू डूइंग. टाइम स्टॉप नहीं होता. आपकी नियत, फोकस. मैं इसलिए आपको अपने एग्जांपल देता हूं. यू शुड टेक मी माय एग्जांपल एज वेज. आई रिमेन फोकस थ्रू माई लाइफ. आई नेवर लुक बैक. आई नेवर बीन पेसिमिस्टिक. मैं अपने बिजनेस में इतना बिजी था कि मुझे साथ वाली चीज का नहीं पता होता था. क्यों? आई रिमेन फोकस. दैट इज माई सक्सेस सेक्टर.
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप कैसे कामयाब हो, तो मैं आपको बताऊं कि हमें, आप पता क्या, यहाँ पे दूसरे को देखते हैं, दूसरे के हर चीज देखते हैं, अपने ऊपर फोकस नहीं करते। वी शुड फोकस ऑन आवर सेल्फ। आपको कोई बंदा खुश नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपने अंदर खुशी ना लेके आए, और वो खुशी आपके अंदर से आती है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि इस जो एक फोन आपके साथ है, इसमें इतना नॉलेज है जो जब मैंने ज्वाइन किया था ये नॉलेज नहीं था। अब आपके पास, अब रात को बच्चा पूरी दुनिया घूम लेता है, डॉक्टर साहब ऐसे ही है, थ्रू आउट दुनिया, नॉलेज, एआई, पता नहीं क्या क्या, डीप सी, पता नहीं कहां कहां घूम लेता है वो। सो व्हाट इज, किस चीज की कमी रह जाएगी? मैं आपको बताता हूं कमी क्या रहेगी, एथिक्स और वैल्यूज की। वो कमी है। इंजीनियर ने आगे बढ़ना है तो उसको 3-4 चीजों को प्रमोट करना है। सबसे पहले, मुझे अब नॉलेज की बिल्कुल फिक्र नहीं है, मेरा बच्चा रियली स्मार्ट है। हमारे इंजीनियर्स ने साबित कर दिया, हमारे पायलट्स ने साबित कर दिया कि वी आर ग्रेट, वी आर ग्रेट। आप भी फ्यूचर के उन्हीं लोगों में हैं जिन्होंने हमें आज इस जगह खड़ा किया और हमारा सर बुलंद है। आप में से आगे अगले 10-20 साल में आप लोग होंगे। लेकिन जो चीज़ आपको बांधनी है ना, क्योंकि दुनिया बिल्कुल बदल गई है, दुनिया बदल गई है। प्रॉब्लम क्या है? डिस्कनेक्ट हो जाएगी दुनिया। आज मैं आपके प्रोजेक्ट देख रहा था, मुझे लग रहा था कि पता नहीं, इफ आई लिव अनदर 5 years दिस विल बी ए डिफरेंट वर्ल्ड। तो आपकी तो लंबी जिंदगी हो तो यू विल बी इन ए वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। तो उसमें कमी जो सी रह जानी है, वो कमी ये रह जानी है कि आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। देखें, मेरा बच्चा मुझे फोन करके कहता है कि मैंने आपको मैसेज तो दे, मैं कहता हूँ यार कभी मिल लिया करो। वो पता कहता है आपको मैसेज तो कर दिया था, एंड दिस इज नॉट गुड। सो वी आर डिस्कनेक्टिंग अमंग एज ए। अच्छा, अब आपकी टॉकिंग, बात करना भूल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम इस पे माइंडफुल ना हुए। आपका इंजीनियर साथ वाले कमरे, मेरे कंपनी में साथ में इंजीनियर बैठा होता है, वो उसको बात नहीं करनी आती, वो बात नहीं करता। क्यों? वो कहता है इट्स ऑलरेडी एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, नेक्स्ट डोर है। सो वी नीड टू प्रमोट वैल्यूज, एथिक्स अमंग आवरसेल्व्स। ये फंडामेंटल है। सबसे पहला काम मैंने पीसी में आके क्या किया, आई वॉज माइंडफुल ऑफ दिस। तो मेरे पास इस वक्त वो नहीं है, मैं आपको दिखाता कि सबसे पहले मैंने एक एनवेलप बनाया, और जब वो बच्चा ग्रेजुएट होगा उसको पहले दिन, बीइंग ए मदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवरी इंजीनियर, आई फील मॉरली बाउंड कि आई शुड गिव हिम द फर्स्ट लेसन। वी हैव नेवर गिवन हिम द फर्स्ट लेसन। एवरीबॉडी टॉक अबाउट पैसा, जॉब, गाड़ी, मोड, yes, those are important for the life, but the point is the first lesson। आप जब बच्चा पैदा होता है उसके कान में गुड अल्लाह अकबर के अज़ान लगाते हैं ना, तो बीइंग एन इंजीनियर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैं मतलब मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने आपको सर्टिफिकेट देना है कि आप इंजीनियर बन गए, उसका पहला लेसन क्या होना था? मैंने इनसे पूछा, मेरे बैठे मेरे रजिस्ट्रार, दे हैव नो लेसन। आई मेड एन एनवेलप जो उसकी लाइफ में हमेशा उसके साथ रहेगा, और उसमें 3 चीजें डॉक्टर साहब मैंने ऐड की। द वन, द वैल्यूज, द सेकंड, प्रोफेशनल एथिक्स, एंड द थर्ड, वो पूरा एक पेज है, एंड द थर्ड वन इज प्रोग्रेशन ऑफ, आपने पढ़ना भी है आगे, छोड़ना नहीं है। प्रोफेशनल सीपीडी जिसको आप कहते हैं कि आपने करना है। आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको ये काम तीनों करने हैं। तो पहला लेसन हमने ये दिया, वो इन्वेलप हो गया। और दूसरा मुझे दुख ये हुआ जब मैंने टेक ओवर किया कि मेरे इंजीनियर जॉन सा है ना, जब वो निकलता है ना, अभी आप जब निकलेंगे तो आपको सबसे पहले होगी कि मुझे नौकरी तब मिलेगी जब मुझे पीसी रजिस्टर करेगी, ऐसे ही है ना। तो उसके लिए आप वीसी साहब को कहोगे यार वसीम साहब आपके दोस्त हैं, जरा उनको फोन कर दे, मुझे रजिस्ट्रेशन जल्दी करवा दें। I hate this thing. Why an engineer who is qualified, he's asking, आप पहले दिन उसके दिमाग में डालें कि सिफारिश के बगैर मेरा पहला काम नहीं हो सकता। It's a very shame
सिंपल बात, वो दोस्त ढूंढता है, 6 महीने बंदे को नहीं मिलते, सेक्रेटरिएट में काम नहीं हो रहा होता, कहता है जी उसके साइन नहीं है, उसके साइन नहीं है, उसके साइन नहीं है। मैंने सोचा कि जब फौजी आदमी जब निकलता है, ग्रेजुएट होता है, तो उसका वालिद नेक्स्ट डे उसको कहता है मेरा बेटा लेफ्टिनेंट बन गया। मैं क्योंकि आजकल फौजियों की ज़बान ज़रा इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा हूँ, वो कहता है मैं लेफ्टिनेंट बन गया। तो मेरा इंजीनियर जब निकलता है तो उसका वालिद पता क्या कहता है कि डॉक्टर साहब सिफारिश कोई मेरा प्रोफेसर वाकिफ़ है, मेरा पीईसी में कोई बंदा वाकिफ़ है। दिस शुड नॉट हैपन। इट टुक मी 3 months to discuss with my secretariat how we can make sure that the day the person is, my young engineer is graduated, next day he gets, without a phone call, he gets the title. गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होती है, इंजीनियर की रजिस्ट्रेशन कराते हैं आप। कितना नीचे ले गए हैं आप अपने प्रोफेशन को। आवर प्रोफेशन इज द प्राइड। तो उसका क्या होना चाहिए, आप अपने नाम के साथ इंजीनियर नहीं लिख सकते जब तक आप रजिस्टर ना हो। तो मैं बीइंग द चीफ, बीइंग द पीईसी, दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी द नेक्स्ट डे व्हेन आपका जब रिजल्ट अनाउंस हो जाए, आपका रजिस्ट्रार साहब आपका कंट्रोलर क्लियर कर दे, तो देन द मॉरल रिस्पांसिबिलिटी ऑन पीईसी to give him the title the next day because he has been qualified. So it took me 3 months. आप imagine करें कितना मुश्किल काम है। मैं अच्छा पहले तो इस मुल्क में पता क्या होता है, ये नहीं हो सकता, कसम से। मैं अभी तक जितने काम किए ना, the first question answer I get, ये नहीं हो सकता। I made it sure कि ये हो सकता है। I went to the developer myself, जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया। मैंने खुद समझा, आई एम ए मैनेजमेंट मैन, आई एम नो मोर इंजीनियर, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा जब आपका रिजल्ट यहां आ गया, व्हाट स्टॉप यू नॉट टू सेंड दिस रिजल्ट टू अ पोर्टल प्रिपेयर्ड बाय पीईसी? सिंपल, वो जी इसमें ये है, उसमें वो है, ब्यूरोक्रेसी है। बट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, इट टुक मी 3 months एंड नाउ होपफुली इंशाल्लाह इस साल जितने बच्चे ग्रेजुएट होंगे उनको नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली उनको उनका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये इंजीनियर को इज्जत किसने देनी है? पहले तो खुद देनी है ना। हम क्या मैसेज देते हैं? अब तक जो होता रहा है वो मैसेज अच्छा नहीं है। हमको इंजीनियर को रिस्पेक्ट हमने खुद देनी है। एंड दिस इज द फर्स्ट एंड द फंडामेंटल एंड फोरमोस्ट एक्टिविटी जो हमने बना दी इंशाल्लाह। और मैं हर रोज, इन रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं, मैं इनको रोज सुबह फोन करके कहता हूं कि आई डोंट वांट टू सी अ फेलियर इन दिस, बिकॉज दिस इज द फंडामेंटल माई ड्यूटी टू पे रिस्पेक्ट व्हेन ही इज ग्रेजुएट द नेक्स्ट डे, एंड इट विल हैपन। तो बातें तो बहुत है, रोटी का टाइम क्या है सर? ठीक है, सो आई टेक इन 5-10 minutes। अब आपको क्या करना है? आप बन गए, इंजीनियर बन गए, आपके प्रोजेक्ट्स भी लग गए, इसमें से कुछ सक्सेस होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ आपने ख्वाब देखे हैं कि मैं बन गया तो बैंक पैसे दे देगा, आप कह रहे हैं कि वो इंडस्ट्री वाले बैठे हुए हैं वो मुझे उठा लेंगे। मायूस होने की जरूरत नहीं है, कीप गोइंग। मेरा एक जो काम और किया मैंने, वो स्लोगन बनाया, वो इंजीनियर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, लीडिंग इंजीनियरिंग फॉरवर्ड, दिस इज द स्लोगन। आई मेड 2 slogans व्हेन आई केम इन द फर्स्ट वीक। लीडिंग इंजीनियर फॉरवर्ड, उसकी वजह क्या है? जो लोग पीछे देखते हैं वो कभी तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि उलझ जाते हैं। आप लेसन जरूर लर्न करें, बट उसको फंडामेंटली उसको अपने ऊपर भार ना बनाएं और फॉरवर्ड हो। और दूसरा मैंने स्लोगन बनाया कि हम खुद अपने आप को कहना चाहिए, प्राउड टू बी एन इंजीनियर, प्राउड टू बी एन इंजीनियर। हमारी सोसाइटी में इंजीनियर को इतना समझा जाता है कि यार ये तो वर्कर है, अब इसके लिए क्या करना है। मुझे एक बंदे कहते हैं कि जी ये मुल्क से बाहर चले जाते हैं, ब्रेन ड्रेन हो जाता है। ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। जिसके घर में बच्चा बाहर चला जाए उसकी फैमिली खुशहाल हो जाती है, वो खुशहाल हो जाता है। व्हाई वी आर सेइंग कि वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है? इट्स नॉट अ ब्रेन ड्रेन।
वर्ल्ड इज ओपन। फिर जब ये मैंने सोचा कि ब्रेन ड्रेन होना, तो फिर मैंने एक और इनको बताया काम। मैंने कहा कि जो बाहर चले जाते हैं ना, वो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। हम कहते हैं यार वो धक्के खाता है, यहाँ आता है तो एयरपोर्ट से धक्के शुरू पड़ जाते हैं। तो एज पीसी आई मेड ए पोर्टल, डॉक्टर साहब, विच इज कॉल्ड ब्रेन गेन, एंड ब्रेन गेन इज गोइंग टू चेंज आवर लाइफ ऑफ वर्किंग। क्यों? पाकिस्तान के जितने इंजीनियर बाहर बैठे हैं वो पाकिस्तान को कुछ देना चाहते हैं, उनको क्रेडिबल प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके जरिए से वो अपना कुछ दे सके। अब देने से क्या मुराद है? आपके ये जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग ब्रेन गेन पे जाएं और अपने आप को ऑफर करें कि मैं ये प्रोजेक्ट करना चाहता हूं, जो तो पाकिस्तानी मेरे जैसा बाबा वहां बैठा हुआ है और वो समझता है कि यार दिस इज ए वेरी गुड प्रोजेक्ट, आई मस्ट, जो मैंने सीखा सैन फ्रांसिस्को में या मैं लंदन की सड़कों में सीखा है, वो मैं इस बच्चे को बताऊं, शायद इसका ये प्रोजेक्ट चल जाए। It connects the outside Pakistan work to Pakistani engineers. It is going to be, Dr. Sahab, a game changer. I have made a platform for young engineers to be open in the world. And for the Pakistanis who are sitting outside Pakistan, they can do lecture, they can do success story, they can give you a project profile कि मैंने ऐसे किया, they can give a peer review of your reports, anything they want to do it. 2 घंटे वो आपको देना चाहता है पर वीक, और आप हैं सीकर, वो है कंट्रीब्यूटर। सो आई हैव मेड सीकर विद द कंट्रीब्यूटर ग्लोबली कनेक्ट कर दिया। मैंने जो अब तक 8-9 महीने में किया है, आई एम टू सेटिस्फाइड बिकॉज आई हैव ट्राइड to break the status quo and bring something new into PEC. And these are the 2 fundamental, और बहुत से है। Why not we should have a e-card? हमारा यंग बच्चा है, उसको तो हर वक्त e-card चाहिए, उसको वो क्या कार्ड, अभी 25 कार्ड उठाई फिर रहा है, उसमें टेढ़ी फोटो उसकी लगी हुई है, वो कहता है जी फोटो भी ठीक नहीं आती। Why he is interested? आप पैसे देते हैं जो आजकल सारे, आप उसके ऊपर करते हैं। तो मुझे कहा गया कि सारे बड़ा फड्डा पड़ जाना है जनाब, फोटो नहीं आ रही, तो पता नहीं क्या क्या स्टोरियां बताई गई मुझे। नहीं यार, लुक एट दिस, मेरे इंजीनियर 20,000 निकलते हैं जी सर एवरी ईयर। वी हैव अबाउट 4 लाख इंजीनियर रजिस्टर्ड, वो भी नंबर आगे पीछे ही हैं, अभी इंशाल्लाह ठीक कर दूंगा मैं उसको। आप इमेजिन करें कि 20,000 पिछले 5 सालों में, 1/4 इज द यंग फोर्स 5 सालों की, और अगले 10 साल मैं करूं तो रफली आप इमेजिन करें कि इट्स 50%, एंड द रेस्ट 50% वो सिर्फ बैठे हुए हैं, दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड। पीईसी में इंटरेस्टेड अब लोग हैं बिकॉज ऑफ द पीईसीज रोल जो अब हमने उस पर निवेदित किया है। तो व्हाई नॉट वी ब्रिंग टेक्नोलॉजी इनटू इट? ई कार्ड भी कर दिया है, इंशाल्लाह इस साल सब बच्चों को ई कार्ड मिलेगा, एक बटन दबाएंगे आपका कार्ड आपके नंबर पे आ जाएगा। ऐसे ही है। सो सम ऑफ द थिंग्स, डाटा भी डिजिटल कर दिया है, ये 4-5 चीजें। तो मैं आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि हम 21st सेंचुरी की पीईसी बनाएं। जब मैं आया पीईसी आईएसओ नहीं थी, पीईसी की कोई पॉलिसी नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा कि पीईसी खराब थी, बट पीईसी उस स्पीड से जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस स्पीड से नहीं चल रही थी। इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर आई विल मेक श्योर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स फॉर 21st सेंचुरीज वो उसके अंदर आ जाएं, और हमारा जो इंजीनियर है उसको फील प्राउड करे कि ये मेरी 21st सेंचुरी की पीईसी है। इंशाल्लाह आप बहुत से प्रोग्राम देखेंगे जो अगले दिनों में आप आएँ। फिर एक आपकी तो यूनिवर्सिटी में नहीं किया, मैंने एक पाथवे टू प्रैक्टिस का एक प्रोग्राम शुरू किया इन दी फर्स्ट मंथ व्हेन आई केम। दैट वाज कि यूनिवर्सिटी एक कमरा दे, हम उसकी ब्रांडिंग करेंगे और उसका नाम होगा पाथवे टू प्रैक्टिस। वो क्या है? वो डेस्क है पीईसी का, वो पीईसी का डेस्क है। उस डेस्क में लॉयल्टी डेवलप होगी। डॉक्टर साहब, जब आपका बच्चा स्कूल में दाखिल होगा उस दिन से उसको पीईसी का बताना है। जब तक लॉयल्टी ब्रांड नहीं बनाएंगे ना आप, अच्छा इंजीनियर को पता ही नहीं होता कि पीईसी करती क्या है।
So I have decided and we have implemented. Lahore UET, the first one who opted for it, and I made a branded office of PEC, Pathway to Practice, in there with this intention कि किसी का अगर कार्ड नहीं बनेगा तो वो वहाँ से ले लेगा जहाँ से PEC उसके यूनिवर्सिटी से अटैचमेंट हो जाती है। उसके बाद मुझे रिसालपुर वालों ने कहा अब तक 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वहाँ हमने पाथवे टू प्रैक्टिस शुरू कर दिया है एंड आई हैव गॉट 36 एप्लीकेशंस कि वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में करना चाहते हैं। तो देर आर पीपल उसको नेगेटिव देखते हैं कि देर आर पीपल ऑन पॉजिटिव। आई सी इट दैट वी नीड दिस ब्रांडिंग विद द यूनिवर्सिटी के पीसी का रिलेशनशिप उसके साथ हो। तो अब आप लोगों को जो इंजीनियर्स हैं उनको अपनी आप स्किलिंग करने को वर्ड जो सा वो चेंज हो गया है। अब आप माशाल्लाह जो आज मैंने देखा है उससे मुझे लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप एआई ले आए हैं, आपने जो से काम जो से शुरू किए हैं उसमें सब में टेक्नोलॉजी है। दिस इज़ ग्रेट। इसके बगैर लेकिन अब उसको जो से हमने नेक्स्ट स्केल पे लेके जाना है। नेक्स्ट स्केल पे लेके जाना है, अपने आप को आपने ट्रेन करना है। अपने आप को ट्रेन करने के लिए क्या है, आपको कोई किसी ने नहीं पकड़ा हुआ। अब तो इतना आसान हो गया ट्रेनिंग कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कंप्यूटर पे बैठ के यू कैन डू द कोर्सेज। अभी मैंने जेनेटिक एआई का कोर्स किया पिछली दफ़ा, तो 5000 लड़कों में से 1257 लड़के पास हुए, बाकी हमने वो कोर्स किया। मैंने वो कोर्स इसलिए किया कि जस्ट टू टेल इंजीनियर्स कि आप इसमें आए, और अब माशाल्लाह हर यूनिवर्सिटी कर रही है, हर चीज़ कर रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट ज़रूर करनी है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट तब होगी जब आप, अब देखें 5 साल में आपने पीई बनना है, तो पीई बनने के लिए आपको आज से सोचना पड़ेगा। पीईसी विल इशू गाइडलाइंस कि 5 साल में प्री रिक्विजिट्स क्या हैं जिसमें आप प्रोफेशनल इंजीनियर बन सकें। तो देर आर कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी, यू हैव टू वर्क हार्ड। आप देखें डॉक्टर जब तक वो पढ़ता नहीं है वो अच्छा डॉक्टर नहीं बनता, जब तक वकील पढ़ता नहीं है वो अच्छा वकील नहीं बनता। तो मुझे जब लोग पूछते हैं आके मैं बच्चे को क्या कहूँ, मैं कहता यार जो मर्जी कराओ उसको एक्शन करो, उसमें जो भी करना करे। सो इंजीनियर का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमारा कंपटीशन किससे है, बाकी प्रोफेशन से है। वी आर ब्राइटर पीपल, वी हैव गॉट अ गुड इंटेलेक्ट, वी हैव गॉट लॉट ऑफ प्लस पॉइंट्स, लेकिन हमें अपने आप को चेंज करना है। हमने अपने आप को चेंज नहीं किया, हमने रियलाइज नहीं किया, हम मैनेजर नहीं बने, हमने एथिक्स और उसकी वैल्यूज़ को प्रमोट अपने अंदर उस तरह नहीं किया जैसे करना चाहिए। हम सिर्फ कंसंट्रेट रह गए कि हम ड्राइंग बोर्ड पे बैठते हैं, हम वर्कर हैं। ऐसा नहीं है, वी आर द क्रिएटर। ये जो बिजली, पानी, सुई, गैस, ये वाला जो हु इज डूइंग दिस, वी शुड फील। जब तक हम अपने आप को फील प्राउड नहीं करेंगे, आपको अगला बंदा रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अब मैं बिफोर आई क्लोज, वीडियो तो नहीं है आप लोगों के पास चलाने के लिए? नहीं है? ओके, सॉरी। है? अच्छा चलो, जब मैं क्लोज करूंगा। अच्छा, मुझे लोग एक और भी सवाल करते हैं जी सक्सेस के फैक्टर्स क्या हैं, तो मैं उनको बताता हूँ 3 चीजें, नॉट सक्सेस के फैक्टर। मैं उल्टा बताता हूँ कि एनिमी ऑफ सक्सेस क्या है। ये बच्चों के लिए है, हम बाबों के लिए नहीं सर, बच्चों के लिए है। क्योंकि आपने अपनी हैबिट को चेंज नहीं करना, हैबिट को चेंज करना है। हैबिट क्या हो जाती है, जो आप काम करना शुरू कर दो हैबिट बन जाती है। कोई बड़ी साइंस नहीं है हैबिट। एनिमी ऑफ सक्सेस, आप लोगों को सारे इंजीनियर पूछते हैं जी सक्सेस फैक्टर क्या है, मैं कहता हूं एनिमी क्या है। कंफर्ट जोन बहुत बड़ा है, ये बाबा पे भी फिट होता है वो इंशाल्लाह। अभी अब थोड़ी देर बाद, अब मैं इसको खत्म कर लूं फिर आप चलाइएगा। तो एनिमी का जो सबसे बड़ा एनिमी सक्सेस है वो कंफर्ट जोन है, उसमें से निकलना ही नहीं है। जो मेरे इंजीनियर हैं सवेरे 11 बजे रात को 3 बजे सोएंगे, बर्गर खाएंगे, सवेरे उठेंगे नहीं, वो दुनिया उधर चली जाएगी। कंफर्ट जोन में रहना है या कोई ये काम करना है, बस कंफर्ट जोन से बाहर ये जो सा है ना, जो नहीं निकलता ना, वो सक्सेस उसका एनिमी है। और दूसरा एक और भी बड़ा एटीट्यूड है, पता है क्या है? वो जो मैंने कहा नहीं हो सकता, कांट डू इट, ये एनिमी है। क्योंकि परसीव्ड आइडिया ना, मैं ये नहीं हो सकता, विदाउट अटेम्प्टिंग
विदाउट अटेम्प्टिंग, आप सोचते साथ ही कह देते हैं कांट डू इट, ये मेरे बस में नहीं है। मैं हमेशा अपने स्टाफ को भी कहता हूं कि प्लीज ये जो सा है ना, ऑल ऑप्शन जब तक एग्जॉस्ट ना हो जाए ना, यू शुड नॉट लीव इट। परसेवेरेंस जो सी है ना, दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एवरीबॉडी। जो बंदा कामयाब होता है और जो नहीं होता, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर परसेवेरेंस है। उसको आदत है कि वो परसू करता है टिल द एंड, और फिर जब वो नहीं होता ना, तो पता क्या कहता है, डू आई हैव डन माई बेस्ट एंड देन लीव द रेस्ट टू द गॉड। और मैंने अपनी लाइफ में आजमाया है कि मैंने पूरी तरह कभी पीछा नहीं छोड़ा, और जब हार गया हूं या कोई नाकामी हुई है, इतना सुकून होता है कि मेरे इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता था, ये शायद मेरे लिए, और फिर मैं उसकी केस स्टडी करता हूं अपने लिए, और वो वाकई मेरे लिए अच्छा नहीं था। तो ये बांध लें आप। और द लास्ट है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। अब मैं पीसी का चेयरमैन बना हूं, ये इसको मैंने बड़ी अपने दिल के साथ लगाया है, पाथ ऑफ लीस्ट। यार डॉक्टर साहब नाराज हो जाएंगे, वो विजिटिंग ते उन्होंने भेजना सी, वो ओदा यार सी, लीस्ट रेजिस्टेंस, वो कम थोड़ा सा ये दिमाग में आता है ना, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी नहीं होती। आप कहते हैं कि यार इन तीन में से कौन सा लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ है, मैं वो अपनाऊं। मेरा नहीं ख्याल कि दिस इज ए गुड थिंग, दिस इज नॉट ए गुड थिंग। मेरे यह बातें करने वाली नहीं है। आई कैन टेल यू इन 8 months आई हैव प्रूव्ड इट कि द लीस्ट रेजिस्टेंस आई हैव नेवर चूजन, आई हैव चूज द राइट पाथ, और इंशाल्लाह उसमें तरक्की होती है। So there is no secret to success. It is a result of preparation, hard work, and learning from failures. This is very, तमाम बड़े बड़े लोग यही कहते हैं। वैसे बताऊं 99%, जॉर्ज वाशिंगटन ने भी ये कहा था, 99% failure comes from the people who have the habit of making excuses. आप एक्सक्यूज करना छोड़ दें कसम से, आप 50% बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये आप कहेंगे ये बाबा का आगे, ये तो हमें ओपन हाउस में बल्ले बल्ले करने आया था, तो ये नसीहतें कर रहा है। बट दिस इज माई मॉरल ड्यूटी, आई टेल यू। आई कैन नॉट रीड, मेरे पास इंग्लिश लिखी हुई, पर आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी अंग्रेजी लिखी, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। तो ये आई कुड रीड इट, बट दैट डजंट मेक मी कंफर्टेबल। सो मैं फिर यही मेरा ख्याल है, वी आर अप्रोचिंग टू, ठीक है। सो इन द एंड जो आपके इंडस्ट्री के लोग हैं, एक मैं बात करना चाहूँगा कि जो बिग प्रॉब्लम है इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज वाला, ये बड़ी देर से एक बज़ वर्ड बन चुका हुआ है, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग। सो वी हैव टू अनलॉक दिस। जब आप आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे, जब आप स्टेटस को तोड़ेंगे, यू विल स्टार्ट प्रोग्रेस। क्योंकि अब आपको जमाना बख्शेगा नहीं। डॉक्टर साहब मैं आपको बता रहा हूं, इफ लैप्स हो गया, आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में लैप्स हो गया, एक्रेडिटेशन में कुछ क्वालिटी नहीं, तो आपका ये अकॉर्ड जो आपने किया हुआ है और जो आपने इंजीनियर पैदा किए हुए हैं, अगर प्रोफेशनल इंजीनियर अच्छा बाहर, आप सोचें, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, एनी बॉडी हु बिकम अ प्रोफेशनल इंजीनियर एंड ही इज गिवन ए सम सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन कि यार कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसने एग्जाम में थोड़े से नंबर कम लिए हैं, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करें, ही गोज ओवरसीज, तो आप अकॉर्ड के तहत आपके पास सर्टिफिकेट है कि यू आर प्रोफेशनल इंजीनियर, सो द पीपल विल एम्प्लॉय यू। एंड इफ यू मेस अप ऑन वन स्ट्रक्चर, बैन हो जाए या गिर जाए, या उसमें इकोनॉमी का स्केल्स का या ख्याल ना रखा जाए, अच्छा डिजाइन ना करें, क्या होगा? वी विल बी बैंड टू बिकम द अकॉर्ड मेंबर, वी आर पाकिस्तानी इंजीनियर्स विल बी डिफेम्ड इन द एंटायर कम्युनिटी ऑफ इंजीनियरिंग। और मैं इसको बहुत अनसीरियस लूँ एज ए चेयरमैन कि जनाब, क्योंकि वो डॉक्टर साहब का रिश्तेदार है, तो मैं उसको कहूँगा आज सीपीडी माफ कर दो, जो आप लोग कई दफा आओ सीपीडी माफ कर दो, भाई क्यों माफ कर दो? इट इज यू हैव टू बी प्रूविंग योर सेल्फ कि यू आर ए कॉम्पिटेंट मैन।
सो टोटल चेंज है, सीरियस बिजनेस है, लॉयल्टी को प्रमोट करना है, आपने अपनी इंस्टीट्यूशंस का नाम अच्छा रखना है। इसका एक ही तरीका है, वी गेट आवर थिंग्स सॉर्टेड आउट इन ए बेस्ट वे। मुझे अब डॉक्टर साहब नॉलेज की कोई फिक्र नहीं है, नॉलेज इन एन अबंडेंस, हाउ टू यूज इट एथिकली या नॉन एथिकली। एथिकली करेंगे। अच्छा, यूरोप वो क्योंकि उनके जो वैल्यूज हैं और वर्क एथिक्स हैं वो बेहतर है, तो नॉलेज से मल्टीप्लाई हो ही जा रहे हैं वो। हम बराबर आ गए हैं नॉलेज में, अगर वो ना डेवलप कर सके तो वी विल बी सफरर। तो आज आप रोज रात को जाएं, अपने माँ बाप के साथ बैठें, चाय पिएं, गप लगाएं और सोचें। और वालिदैन चाहते हैं कि हमारा बेटा जौन सा है वो एथिकल हो, वैल्यूज हो। उनकी ख्वाहिश नहीं है कि ये इन चीज़ों को ना करें। आप उनकी उम्मीद है, उन्होंने आप पे 10-10 लाख रुपया लगा के उधार लेके मेरे इंजीनियर्स को पढ़ाया है। आप सिर्फ इसी गम में हैं कि नौकरी नहीं मिल रही। नौकरियां बिल्कुल प्रॉब्लम है। वी आर ट्राइंग टू से कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे जॉब्स ज़रा ज़्यादा निकलें, मगर जो अच्छा बच्चा होगा, जो अपने स्किल्स को इन्हांस कर लेगा, ही हैज़ अ बेटर चांस। इट्स ए कम्पेटिटिव वर्ड। आप किसी को नहीं कह सकते जी आप ये बंदा रख लें क्योंकि ये नालायक है, मैं बंदा रख लें। ये नहीं होगा, अब तो बिल्कुल ही नहीं होगा सर। सो मेरे यंग बच्चों, आपका ये सफ़र अब शुरू हुआ है। यू हैव जस्ट, आप समझ रहे हैं ना कि ये मैंने पढ़ाई खत्म कर ली, नहीं ये पढ़ाई खत्म की, ये आपको एक लाइसेंस मिला है टू बिकम टू प्रैक्टिस। हाउ यू डू योर प्रैक्टिस इज नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को अपने साथ बांधते हैं और मेहनत करते हैं और अपने प्रोग्रेशन को आगे लेके चलते हैं। यूनिवर्सिटी हैज़ डन योर बिट। इट्स अ वंडरफुल यूनिवर्सिटी, यू हैव ए वेरी गुड टाइम, लैब्स आर देयर, कुछ कमी होगी, कुछ होगा, लेकिन अब आप एक छोटे से तालाब में नहीं है, यू आर इन ए सी। वहाँ पे बहुत से जानवर ऐसे हैं जो आपको खा जाएंगे, बिकॉज यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। सो आपको मेरी बातें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल की लड़कियां बहुत तेज हुई हैं, वैसे मैं देख रहा हूँ, दे आर मच ब्राइटर। इनके मैंने प्रोग्राम्स देखे हैं, दे स्पीक वेरी वेल एज कम्पेयर टू आवर यंग इंजीनियर्स। सो आप पे भी बहुत ज़्यादा है कि यू शुड कम आउट, यू शुड डेवलप योर स्किल्स इन एन। थैंक यू। तो इंशाल्लाह दोबारा मुझे मौका मिला तो फिर दोबारा डॉक्टर साहब बुलाएंगे, अगर अच्छी सी आज रोटी खिलाएंगे उस पर गेज करूंगा कि मैं दोबारा आऊं कि ना आऊं। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपको सुनने का, आपको टाइम देने का, थैंक यू वेरी मच। अब ये 2 मिनट की जो मैंने बातें की हैं कि वो पाथवे टू प्रैक्टिस क्या है और जो ब्रेन गेन है उसकी मेरा ख्याल है इनके पास वीडियो है, तो वो आप देख लें, अगर बोर नहीं होंगे। आई थिंक, आई एम श्योर यू विल लाइक इट। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।
Thank you so much, audience, for your attendance. Thank you so much, sir. Your remarks and insights were very valuable to our students, and me being a student other than engineer, I guess your words have been very useful to me as well. I will now request the chief guest and the worthy Vice Chancellor of the University of Art to please come again on the stage and give away certificates to students from various departments of the Faculty of Engineering and Faculty of Computer Sciences whose projects were ranked the best. Respected Dean Engineering is requested to please join the students from Faculty of Engineering. I have an announcement for the supervisors for the teams who ranked best. The supervisors are instructed to join their teams on the stage as the team title is announced. All right. We will start with the Department of Chemical Engineering that comes first in the alphabetical order. Chemical Engineering Department. The title of the second best project in chemical engineering is Production of 15 tons per day carbon nanotubes from low density polyethylene waste. The project was supervised by Dr. Salim Iqbal and the team members are Ali Hasnan, Muhammad Isharab Abdullah, Rida Fatma and Hamza Ali Nasir. The best ranked project in the Department of Chemical Engineering is production of 200 tons per day bioethanol from cotton stalk. It was supervised by Dr. Kashif Iqbal and the team members are Ijaz Ahmed, Muhammad Puneem, Muhammad Awais and Wasif Riaz. Of Civil Engineering. The title of the second best project in civil engineering is Numerical Modeling of River Training using Spurs and Dikes. The project was supervised by Dr. Ahmed Bilal and the team members are Basit Ali, Ahmed Raza, Muzain Khalil and Muhammad Mohsin. The best ranked project in the Department of Civil Engineering is Seismic Vulnerability Assessment of... Yes, sir. Is the next time. Next time. Ma'am, can you... The project ranked best in the Department of Civil Engineering is Seismic Vulnerability Assessment of Existing Reinforced Concrete Buildings, Case Studies, supervised by Engineer Muhammad Haroon and the team members are Rukhsar Mahmood, Ehsan Ullah, Faizur Rahman and Abdul Hanan Khan. From the Department of Electrical Engineering, the second best project under the title Design and Development of an Automated Fruit Sorting System using Deep Learning, supervised by Anas Ibrar, and the team members are Shujat Ali, Atiya Ali, and Muhammad Ahmad Nawaz. The project that ranked best in electrical engineering department is developing an IoT integrated smart solar flower using Raspberry Pi, supervised by Dr. Anam Habib, and the group members are Muhammad Uzaifa Wahid, Anwarul Haq, and Bilal Hussain. It's now the Department of Mechanical Engineering. The second best project this time is design and fabrication of portable laser engraving machine that was supervised by Mr. Muhammad Azim and the team members are Muhammad Farhan Subhani, Sajafa, Faizan Nadeem and Hussein Kaleem.
The project ranked best in the Department of Mechanical Engineering is design and prototype, development of 3D printed tilt rotors, VTOL aircraft for urban air mobility, was supervised by Mr. Waqas Javed, and the team members are Shehzad Khan, Rizwan Ahmed, Subika Rafaqat, and Dawir Rohan Khan. Next up we have is Mechanical Engineering and Technology program. The second best project is Design and Fabrication of Shell and Tube Heat Exchanger Test Bench, supervised by Mr. Shahid Iqbal, and the team members are Malik Zishan, Mohsin Ali, Imran Rashid Lodi, and Ahmed Faraz. The project that ranked best in the Department of Mechanical Engineering is Design and Fabrication of Automated Patient Transfer Bed. It was also supervised by Mr. Muhammad Atif Niaz. Group lead. The group members are Danish Bashir, Muhammad Umar Ashraf, Hamad Ali, Waleed Abdullah, and Waqar Ahmed. Mechatronics Engineering Department. The second project in the Mechatronics Engineering Department is development of an advanced hearing aid with real-time noise reduction and speech-to-text conversion. The project was supervised by Ms. Aisha Akbar Awan, and the team members are Aleen Qureshi, Nukba Khalid, and Umar Muzammil. The project ranked the best in the Department of Mechatronics Engineering is design and development of IoT-driven multi-parameter monitoring system for enhanced patients. The project was supervised by Ms. Nazo Haroon, and the team members are Iman Khalid, Moz Ishfaq, Samran Khalid, and Muhammad Dawood. मेरी दूसरी शीट लाओ जल्दी जल्दी मेरी दूसरी शीट लाओ. Thank you so much, Dean. You may take your seat now. Now I request respected Professor Dr. Wazir Zada Khan, Dean Faculty of Computer Science, to join the students from his faculty. Now the startup that was selected projects from Computer Science. Computer Science program, the project ranked the best is Speech Steer AI-enabled voice control wheelchair, supervised by Ms. Munazza Bibi, and the team members are Sobia Parveen, Nisha Arshad, and Alishba Fayaz. The project that ranked second best is Meta Campus, supervised by Ms. Isra Naz, and the team members are Malik Ibrar Mahmood, Alisha Yawar, and Aiza Parvez. Artificial Intelligence Program. The project ranked the best in Artificial Intelligence Program is Dementia Care New Report, supervised by Ms. Sadia Wahid Awan, and the team members are Zainul Hassan Awan, Farjad Jilani. The second best project in Artificial Intelligence Program is AI-powered X-ray analysis for tumor and fracture detection with chatbot assistance, supervised by Ms. Aksa Safdar, and the team members are Sayyid Muhammad Ali Hashmi, Muhammad Mujtaba, and Muhammad Uzefa. I thank Professor Dr. Wazir Zada Khan, Dean Faculty of Computer Science, for patronizing his students. Thank you, sir. Now, I would like to take a moment to acknowledge and appreciate the valuable support of our esteemed sponsors. May I first invite Ehsan Habib from Askari Bank to please come on stage and receive the shield in memory of the event. I would like to request Director of ORIC, Dr. Amjad, to please join us on stage. Up next we have is Mr. Zan from Global Engineering Services.
Can we please have Mr. Zan from Global Engineering Services on the stage? All right. Up next we have is Mr. Asad Abbas Chima, the CEO of Bahu Enterprises. Moving next we have is Mr. Hamza Rahman from Mecca Dev Engineering. Now may I request Mr. Hamza Hashmi from Neon Consultants to come forward. From 4P Group, we have the CEO, Asif Gujjar. Moving forward, we have Mr. Zishan Ali, Chief Revenue Officer from Phytech Solutions. Four P Group? Okay. I would like to request Mr. Asif Gujjar, the CEO of 4P Group. And now I would like to request Mr. Atik from Kaswa Industries. Our employer partners have always been generous with their time and support, and this year is no exception. Please receive your certificates of acknowledgement. Optimum LLC, Quitsol Solution Businesses, Bank Al Falah, Perfect Chemicals, Apex Energy Limited, Friends Engineering Alliance, Nawazish Builders and Developers, OTS Global, Nightingale Private Limited, VA Industries Limited, Raytech Solutions, Ternotech Private Limited, Heavy Mechanical Complex HMC,
Volta Batteries Hattar, Zulfikar Security, HVACR Society, PAEC Islamabad, Civil Aviation Authority, KSP Pumps, Latif Banaspati, NESP, Blink Technologies, Startup Coworks, Stella Technologies, Stella Technologies, CACF, Drew Park, OC Analytica, Ufone, TechRix, Glaxit, GRC Learning, GRC Learning, Tree Technologies, Alexsoft Technologies, KSP Pump. Yes, sir. खत्म हो गया। All right. You both are requested to stay on stage for a few more moments. Now I would like to request worthy Vice Chancellor, University of VA, to please present the souvenir to the worthy chief guest as a token of appreciation for his participation in the Open House and Job Fair 2025. Thank you so much, sir. You all may please take your seats now. Now, after all the appreciation certificates, I now invite Professor Dr. Amjad Hassan, Director of ORIG, to come on stage for a formal vote of thanks to the participants. Thank you so much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Chief Guest, Engineer Waseem Nazir, Chairman, Pakistan Engineering Council, respected Vice Chancellor, Professor Dr. Jamilun Nabi, esteemed deans, directors, industry professionals, sponsors, distinguished guests, faculty members, and my dear students. At the end, normally it's very difficult actually to say something because so much has been said and such a useful material after our respected Vice Chairman PEC and respected Vice Chancellor.
So I think if we can retain some of that, that would be enough to me. और जो सर ने ख़ास तौर पे जिन चीज़ों पे फोकस किया, ब्रेन ड्रेन पे और ब्रेन गेन वाला कॉन्सेप्ट, वो मैं इनके साथ जो मैं बैठा तो उस पर डिस्कशन भी हुई, तो आई वाज रियली वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दैट सर. और आज जो आपने बहुत बड़े स्पेसिफिक और कैंडिड किस्म के एडवाइसेस दिए हमारे बच्चों को, मेरा ख्याल है कि आई विश कि आप उसे, मैंने कम से कम बहुत लर्न उसमें किया है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाली आपकी बात और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि आप खुद को पहचानें. मतलब वाई डू यू कम्पीट विद अदर्स, कम्पीट विद योर सेल्फ, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट मोर विद इन अस. हमें अल्लाह ने जिस तरह पैदा किया और हर एक इंसान को डिफरेंट पैदा किया, तो डिफरेंट पैदा करने का एक ख़ास मकसद था, बिकॉज वी हैव अ डिफरेंट पर्पस और वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट डिफरेंटली. तो वो चीज़ सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है, हार्नेस करनी है. और दूसरी एक और बात सर ने की कि जी ये नहीं हो सकता, मतलब ये आप निकाल लें जहन से कि ये नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. तो मैं सर और ज़्यादा तो इससे मैं सिंपली ये रिएट्रेट करूँगा अपने लोगों से कि ये आपकी बहुत अच्छी नसीहतें, और वाइस चांसलर साहब ने जो बातें की और अपना पोर्ट्रे किया यूनिवर्सिटी का पिक्चर, आई होप कि आपने उससे आइडिया हो गया होगा कि व्हाट आर वी डूइंग. मैं सिंपली सर आपका शुक्रगुजार हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ओरेक एंड ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ वाह. आपके कलीग हैं हमारे एडिशनल रजिस्ट्रार सुहेल साहब, दीगर हमारे जितने गेस्ट्स हैं फ्रॉम स्टेट बैंक, अदर इंडस्ट्री, जितने लोग आज आए हैं. बेसिकली ये शो तो मैं कहता हूँ कि ये आप ही का शो है, हमारे बच्चों का शो है. हमने जो प्रोडक्ट तैयार की वो आपके सामने हमने आज पेश कर दी, और उसके बाद इट्स अप टू यू देन. बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला. वी कैन अंडरस्टैंड कि इट्स सो हार्ड कि इतने टाइट स्केड्यूल से हर एक की जो मसरूफियात हैं उसमें से ये आना हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है. और इसके साथ में अपने जो ऑन कैंपस लोग हैं, मैं समझता हूँ कि उनका शुक्रिया अदा करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें सर फहरिस्त हमारे वाइस चांसलर साहब हैं कि उन्होंने इस दफ़ा इस ओपन हाउस एंड जॉब फेयर को डिफरेंट तरीके से करने में बहुत सपोर्ट किया. ये बेसिकली आइडिया तो उन्हीं का था अप स्केल करने का, लेकिन सिचुएशंस ऐसी, मुल्की हालात जो थे वो इतने अनसर्टन थे, उसमें हम बिल्कुल एंड तक क्लियर नहीं थे कि हम करेंगे कि नहीं. लेकिन एट लास्ट वी डिसाइडेड टू गो फॉर इट, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सपोर्ट, रजिस्ट्रार साहब हैं, हमारी एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, हमारे ट्रेडर हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, डीन्स हैं, पर्टिकुलरली इनका जो शहाब साहब हैं, मैं रियली ग्रेटफुल फॉर हिम, वो उन्होंने टाइम दिया, आपके पास भी हो गए. और डीन कंप्यूटर साइंस, डीन इंजीनियरिंग, और बाकी जितने स्टाफ थे हमारे, जितने मैनेजमेंट में हैं, शौकत साहब हैं, मैं एक एक का शायद नाम ना ले सकूं. हमारी ये बच्चियां हैं, इन्होंने जिस तरह से कंडक्ट किया, लेकिन जिनका मैं नाम नहीं भी ले पा रहा, हमारे दिल में उनकी कदर है. और वी होप कि जो इस दफ़ा कमी थी वो इंशाअल्लाह आइंदा नहीं होगी. और मैं बच्चों का भी शुक्रगुजार हूँ, उनके असातिज़ा का, उनके सुपरवाइज़र्स का, जिन्होंने ये काम किया. आज वो सारा यहाँ पे प्रेजेंट हुआ. एंड बीइंग टीचर, मैं खुद चूँकि एक उस्ताद हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि ये काम इतने आसान नहीं है, इसके पीछे बहुत एफर्ट होती है, बड़ी मुश्किलात भी होती हैं. लेकिन डिस्पाइट ऑल दोज ऑड्स एंड डिफ़िकल्टीज़, अगर आप लोगों ने ये अचीव किया तो मैं कहता हूँ इट्स सच अ वंडरफुल जॉब. एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर योर टीचर्स. तो हमारी ये काविश थी, और ये कितना हम इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, हम देखते हैं. इंशाल्लाह हम इसे पोस्ट इवेंट इसको एवेलुएट भी करेंगे विद द होप कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे भी बहुत बेहतर होगा. लेकिन वही बात है कि ये आप लोगों का ही शो है, आप लोगों की ही तरफ नज़रें हैं, हमारे यूथ की तरफ पूरी कौम की नज़रें हैं. और मैं सर ने तो मेनली फोकस किया इंजीनियरिंग को, तो मैं ये समझता हूँ, और मेरे ख्याल में वो इससे इत्तेफाक करेंगे, कि इंजीनियरिंग के साथ जब तक कंप्यूटर नहीं मिलता तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी. तो कंप्यूटर भी उसी तरह ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जितना कि इंजीनियरिंग है, और उनका भी जो कंट्रीब्यूशन है वी ग्रेटली वैल्यू दैट. और विद दीज वर्ड्स सर, आई वंस अगेन थैंक यू एंड थैंक यू द ऑडियंस. इसके बाद एक छोटी सी अनाउंसमेंट होगी, वो आप सब लोगों के लिए है, तो प्लीज़ उसे आप देखिए. तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ. थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन. अच्छा सर, वो मुझे बताया गया कि आपकी एक छोटी वीडियो वो
ब्रेन गेन के हवाले से भी कुछ है? वो खैर वो हम कर लेते हैं, आपने वो किया. It is a request to the audience to kindly please be patient for a moment. As soon as the video is played, you guys will be entertained. Thank you so much, sir, for your earlier reviews. I couldn't remark. Thank you. Ladies and gentlemen, I would seek your attention to listen to some important announcements before the event comes to an end in the auditorium. Students and faculty members will remain seated as a token of respect till the guests leave the venue. There will be a group photo outside of the main entrance of the auditorium soon after the proceeding is over here. After the photograph, the invited guests will proceed to the seminar hall for lunch. Team from the office of the Deputy Registrar will facilitate. Representatives of the invited companies will interview the graduates at the designated venues from this time onward. Dr. Nasir, Chairperson, Management Sciences, and his team will coordinate with you. We sincerely appreciate the presence of our faculty and students at today's open house and job fair. Your enthusiasm and contribution have been the true highlight of the event. Now I would request the Director Auric to accompany the chief guest, the Vice Chancellor, Registrars, Deans, Treasurer, Controller of Examinations, Directors, representatives of the guest companies, best project teams, and other dignitaries to outside of the auditorium for the group photograph. Thank you once again for making this event a success. Have a rest of the nice day. Thank you.